Okay, so let's we continue our discussion on the data flow diagram. As per the content of the previous lecture, the data flow diagram is basically categorized into the three different types. The first is the context diagram, second one is the overview diagram, and third one is the detailed diagram. So the first, the context diagram is basically just show you how the external entities are connected with the system. What are the data? Those are flows between the external entities and the system will be only depicted by the context diagram. This is also known as the level 0 diagram. Clear? And there is only single level 0 diagram for any system. Okay, now move to the second level, that is the level 1, and it is also known as the overview diagram. So overview diagram, again, it is a this is every system will have only one level 1 diagram. There is no more than one DFT can be drawn at level 1 for any system. Clear? So this is called the overview diagram. So the high level functions, high level requirements, functionality can be identified from the SRS document, and these high level functions need to be depicted by the level 1 diagram. This is also known as the overview diagram. And the third level, third is called the detailed diagram. So this is a level 2 diagram. ठीक है, इसमें क्या होगा कि whatever high level functions you have identified at level 1 and represented at level 1, these can be expanded into the more detailed functionality. ठीक है, एक फंक्शन को आपने जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है जो आपने लेवल 1 पे यूज किया है, उसको और डिटेल्ड करने के लिए यू कैन ड्रॉ, you can explain, you can expand that functionality into the sub functions into the level 2. ठीक है, तो लेवल 2 आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो फिर आपका लेवल, जब लेवल 2 पे आपने जो फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब किया है, उसको अगर इफ यू वांट टू फर्दर एक्सपेंड दैट फंक्शनैलिटी इनटू द more detail, then you can use the level 3. And at the level 3, suppose that again you want to expand the functionality, so you can use level 4. Clear? So there are some rules that how up to what extent we can expand the functions into the sub functions that I have already explained in that particular lecture. So now today we are going to discuss how we can draw the data flow diagram at level 0, level 1, level 2 using an example. So this is an example RMS calculating software. So in this software, basically what we are going to do, we are by this software we accept the 3 integers from the user, and we calculate the RMS value for these 3 integers integers that we have accepted from the user, and display that RMS value to the back to the user. So these are basically, these are the, you can simply say that the objective of this software that we need to perform. So now considering these aspects, we need to draw the data flow diagram. So the first, we need to identify what are the different types of external entities and the system, and they, which are providing the information to the system or receiving the information from the system in terms to draw the context diagram. Clear? So the context diagram is simple to develop. The system accepts 3 integers from the user and returns the result to them. Clear? So using, considering this example, you can say that कि यहाँ पर आपके जो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं वो क्या है, केवल यूजर है और एक हमारा सिस्टम है. यूजर क्या कर रहा है, 3 इनपुट्स दे रहा है, 3 इंटीजर्स को इनपुट दे रहा है, प्रोवाइडिंग द 3 इंटीजर्स वैल्यू टू द system, and the system, after calculating that RMS value for these 3 integers, the system will provide the result RMS value in terms of the result will provide it to the user. Clear? तो इसके लिए हमें अगर context diagram बनाना है तो ये very simple होगा. You can see कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, compute RMS. This is what, this is a system name that we are going to develop. ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका नाम होगा ये. So as we have discussed in the context diagram, there will be only single bubble
और जो आपका जो एक ही बबल होगा और उस बबल का जो नेम होगा दैट विल बी द नाउन, ठीक है, और आप उसको एज ए जो आपका सिस्टम का नेम है दैट कैन बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर बबल। तो ये जो आरएमएस कंप्यूट आरएमएस, दिस इज व्हाट, दिस इज द नेम ऑफ दिस बबल, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इन दिस केस यू कैन सी कि आपका जो यूजर है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सटर्नल एंटिटी। तो एक्सटर्नल एंटिटी हो गया, ठीक है। अब व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, एक आपका जो सिस्टम है और ये एक एक्सटर्नल एंटिटीज हैं। तो यू कैन सी कि जो डेटा आइटम्स हैं दीज आर प्रोवाइडेड बाय, दीज आर फ्लोइंग फ्रॉम द यूजर टू द सिस्टम एंड फ्रॉम द सिस्टम टू द यूजर, इट इज अ रिजल्ट, ठीक है। सो दीज टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली शेयरिंग बिटवीन द यूजर एंड द system. So that is sufficient to explain into this context diagram. So the context diagram is a very simple way, or you can say that it is having the highest level of abstraction in representing the information about the system, ठीक है। सो दिस इज अ लेवल जीरो डायग्राम, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो जीरो है, व्हाट दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग द प्रोसेस नंबर, दिस इज अ प्रोसेस नंबर, ठीक है। सो ये जीरो जो है, जीरो आपकी प्रोसेस नंबर है, ठीक है। यहाँ पर दिस जीरो इंडिकेटिंग द लेवल जीरो, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं होती किसी भी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है। आपके डेटा आइटम्स जो हैं, जो डेटा फ्लो है, ये डेटा फ्लो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डेटा आइटम्स, हम ये लिख सकते हैं, इसको हम तीन में भी लिख सकते हैं, डेटा आइटम वन, डेटा आइटम टू, डेटा आइटम थ्री, वी कैन राइट इनटू दिस। और हम कंबाइंडली इसको लिख सकते हैं, डेटा आइटम्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम आइटम्स दे रहे हैं। देन इनसाइड द सिस्टम वी कैन एक्सप्लेन कि आपका डेटा आइटम वन क्या होगा, डेटा आइटम टू क्या होगा, डेटा आइटम थ्री क्या होगा। तो दैट कैन बी एक्सप्लेन इनसाइड दैट पर्टिकुलर सिस्टम। बट अगर हम बाहर भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, बट वी ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ data flows, those are indicating, those are connecting two entities, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितने अगर हम कंबाइन करके बताएंगे तो वो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। सो दिस इज अ लेवल जीरो। So now for the level one, from a cursory analysis of the problem description, we can see that the system needs to perform several things. Now first we need to, जैसे मैंने आपको बताया कि SRS का यूज करके हम क्या करेंगे लेवल वन के लिए। First we need to identify the high level functions. First we need to identify what are the major functions those the system going to be perform. Only then you will be able to draw the number of bubbles according to the functions that you have identified, according to the high level functions that you have identified from the SRS, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर जितने भी SRS में फंक्शंस होंगे, whenever you are drawing the level वन, लेवल वन में कोई भी फंक्शनैलिटी आपकी स्किप नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि आप लेवल वन में, जैसे मैंने आपको बताया, लेवल जीरो जो होता है उसमें भी आपका पूरे सिस्टम के लिए एक ही डायग्राम होता है। इन द सेम वे फॉर द लेवल वन देयर इज ओनली सिंगल डायग्राम फॉर ए सिस्टम। You cannot draw more than one level 1 DFD for a single system. There is only one uh, लेवल वन DFD फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यू कैन यूज मिनिमम थ्री हाई लेवल फंक्शंस और अप टू मैक्सिमम 7 हाई लेवल फंक्शंस आप वहां पर यूज कर सकते हैं, या किसी भी लेवल पे हम या मिनिमम 3 या हायर लेवल सबसे ज्यादा आप 7 फंक्शंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेप्ट द लेवल जीरो, ठीक है। तो लेवल वन पे भी अगर आपकी सपोज दैट कि इफ यू हैव आइडेंटिफाई कि वहां पर आपने 10 या 12 हाई लेवल फंक्शंस आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपके पास लिमिटेशन है कि आपको 7 से ज्यादा यूज नहीं करना है लेवल वन पे, देन व्हाट, आप छोड़ नहीं सकते उनको, क्या व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंबाइन द फंक्शंस, ठीक है। आप कोशिश करो कि उनको क्लब करो और क्लब करके एक एक फंक्शन की तरह उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। एट वो आपने जो क्लब किया है, फिर आप क्या कर सकते हो उसको लेवल टू पे इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो लेवल वन पे आप कोशिश करें कि आप जितने भी फंक्शंस हैं, हाई लेवल फंक्शंस हैं, दे नीड टू बी रिप्रेजेंटेड इनटू द मैक्सिमम 7 नंबर ऑफ फंक्शंस इफ यू आर हैविंग मोर। अगर आपके 3 से कम है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, एक आध को एक्सपेंड करके यू कैन इंक्रीज अप टू द 3 लेवल, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है,
ठीक है. Now, so for this problem, we have to identify the functions, the high level functions. So you can see कि यहाँ पर है क्या, the first high level functions, you can see that the system need to read the numbers from the user, accept the numbers from the user. ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया. सेकेंड फंक्शन कि जैसे मैंने बताया उसमें था कि आपका जो नंबर है दे शुड बी रेंज बिटवीन -1000 टू +1000, उस रेंज में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए. सो दैट मीन्स द सेकेंड हाई लेवल फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम शुड टू वैलिडेट दीज नंबर. ठीक है, तो वैलिडेट करना, उनको चेक करना कि ये इसी रेंज में है, जो भी इनपुट दिया है वो इस रेंज में है या नहीं. सो द सेकेंड फंक्शन, हाई लेवल फंक्शन फॉर दिस सिस्टम इज टू वैलिडेट द नंबर. नाउ द थर्ड फंक्शन इज व्हाट, to calculate the root mean square RMS of the inputs number. So this is you can say that this is the key function जो basically जिसके लिए हम ये बना रहे हैं. तो ये की फंक्शन है कि हमें कैलकुलेट करना है, आरएमएस को कैलकुलेट करना, whatever inputs, validated inputs that we have accepted from the customer, from the user. ठीक है, तो ये हमने, ये इसका थर्ड हो गया. तो फोर्थ इज व्हाट, कि जो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब कैलकुलेट करने के बाद द टास्क ऑफ द सॉफ्ट सिस्टम शुड टू डिस्प्ले दैट रिजल्ट टू द यूजर. सो दिस इज द fourth function. So these are the four major functions that we have identified. Now these four major functions will be represented by the four bubbles into the level 1 DFT. ठीक है, अब ये है, ये हमने देखा कि this is what, this is the read number. So it will be basically indicating the first high level function that is accepting the input from the user. Then this is what, the validate number. This is the second high level functions which is validating the numbers that we have read from the user. ठीक है, then third is what, the compute RMS. So this is what, compute RMS is what, कि यहाँ पर आपको जो मेन इसका की फंक्शन है, जिसमें आपको आरएमएस वैल्यू को कंप्यूट करना है जो भी इनपुट आया है उससे. सो दिस इज द third you can say that the third functions, third process, and the finally fourth one is the, we need to display the result. ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डेटा आइटम्स हैं, जो डेटा आइटम्स होंगे, always remember we will discuss how we can we have to maintain the, we need to maintain the balance in and data flow diagram. ठीक है, वो भी हमारा जरूरी है. तो ये जो हमने लेवल 0 पे देखा था, लेवल 0 में क्या था, केवल यहाँ पर अगर हम देखें लेवल 0 में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक इनपुट आ रहा है और एक आउटपुट जा रहा है. ठीक है, तो इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री इज व्हाट, बाउंड्री यू कैन से दैट कि इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री इज व्हाट, दिस इज द बाउंड्री. ठीक है, ये सिस्टम की बाउंड्री है. ठीक है, इस सिस्टम की बाउंड्री के बाहर क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल एंटिटीज. ठीक है, तो जब हम आपकी डीएफटी लेवल 1 ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए ये जो इनपुट है, ये जितने भी डेटा फ्लो कनेक्टेड हो रहे हैं इस बाउंड्री से, दे मस्ट बी देयर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये है द बाउंड्री, अब आपका बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, ये हमारा एक सिस्टम है. सो दिस इज बेसिकली द बाउंड्री ऑफ, हमने क्या किया, लेवल 0 को ही थोड़ा एक्सपेंड कर दिया. आपके जो सिस्टम में, सिस्टम के अंदर क्या दिख रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेवल 1. ठीक है, सो इन दिस लेवल 1 यू कैन सी दिस इज, यहाँ पर हम क्या करें, डेटा आइटम्स आर कमिंग टू दिस रीड नंबर्स. ठीक है, सो दिस रीड नंबर्स, नाउ आप after reading these numbers are provided to this process. After validating these numbers, if the numbers are valid, then it computes the RMS value and display the result to the user. ठीक है, so this result will be provided by this process to the user. ठीक है, now if the numbers are not correct, then the error message will be provided to the users. ठीक है, so this is what, this is the you can simply say that कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ये हमारा लेवल 0 का ही एक एक्सपेंडेड फॉर्म है. ठीक है, लेवल 0 का ही एक एक्सपेंडेड फॉर्म.
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द नंबरिंग, यहाँ पर हम देखेंगे ये लेवल 0.1 का मतलब क्या हुआ, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोसेस। ये जो स्टार्टिंग में जीरो दिख रहा है, ये जीरो क्या बता रहा है, ये जीरो बता रहा है कि हमने इससे प्रीवियस लेवल की कौन सी प्रोसेस को यहाँ पर एक्सपेंड किया है। तो आप देखेंगे कि लेवल जीरो पे हमने एक ही प्रोसेस थी, एक ही बबल्स था, द नंबर दैट वी हैव प्रोवाइडेड to that bubble is zero. So that means that zero bubble is expanded here. So this zero bubble is expanded into these four bubbles. ठीक है, so this you can see starting में हम सब में zero zero है. So that means this is the expansion of the zero bubble that is at the upper level. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 2 3 4. So these are the four sub functions of the high level function that we have represented at the upper level. Upper level that means zero. ठीक है, so this is about the level 1. now the level 2. level 2 का मतलब क्या हुआ कि अब ये हमारे पास चार प्रोसेस हैं. if we are identifying that कि इन चार प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस है जिसको हमें और एक्सपेंड करना चाहिए, दैट मीन्स कि we have identified that कि this particular process is basically required some need to be expand into the some smaller functionality, then we have to draw the level 2 diagram for that particular process. तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आपका जिस कंप्यूट आरएमएस है, कंप्यूट आरएमएस है, ये आपका 0.3 प्रोसेस है. तो अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द लेवल 2 डायग्राम. जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि जो आपका लेवल 1, लेवल 0, these are the mandatory diagram. ठीक है, these are the mandatory diagram. Each system must have at least these two levels, level 0 and level 1. level 2 is the optional. level 2 is the optional diagram. ठीक है, अगर हमारे ये जो हमने लेवल 1 पे हम ये जो फंक्शंस देख रहे हैं, if they are sufficient enough to write, or if we are able to easily identify the algorithm that we need to implement these four functions, then we need no need to expand these function at the further level. ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हम इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, इसमें और क्या क्या डेटा फ्लोज हो सकते हैं, इसको हमें और एक्सपेंड करना चाहिए, सो इन दैट केस वी कैन ड्रॉ द लेवल 2. ठीक है, तो unlike the level 0 and level 1, level 2 may have more number of DFD. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपका एक ही DFD हो लेवल 2 पे. लेवल 2 पे आपके एक से ज्यादा DFD हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन कि आपके लेवल 1 पे आपने कितने बबल्स को यूज किया है. ठीक है, तो लेवल आपके लेवल 2 पे हो सकता है 0 DFD हो, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 फंक्शन है. ठीक है, तो अगर 4 फंक्शन है तो लेवल 2 पे आपके 5 DFD नहीं हो सकते, क्योंकि 4 फंक्शन है तो मैक्सिमम चारों को ही एक्सपेंड करेंगे लेवल 2 पे. ठीक है, अगर हमने चारों को एक्सपेंड किया तो उस केस में क्या होगा कि आपके 4 DFD बन जाएंगे. हो सकता है कि हम ये देख रहे हैं कि ये रीड नंबर है, दिस रीड नंबर प्रोसेस नो नीड टू बी एक्सपेंड इनटू द फर्दर सब प्रोसेसेस, तो हम इसके लिए नहीं करेंगे. ठीक है, वैलिडेट नंबर्स, इसको हमें लग रहा है कि इसकी की जरूरत नहीं है, तो नो नीड टू एक्सपेंड दिस प्रोसेस. ठीक है, कंप्यूट आरएमएस को हमें लग रहा है कि इसको एक्सपेंड करना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसके लिए लेवल 2 बनाया. सो लेवल 2 डिपेंड्स ऑन कि आप किस प्रोसेस, कितनी प्रोसेस जो आपकी प्रीवियस लेवल पे है उसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड किया, तो दिस इज अ लेवल 2. ठीक है, अब इसमें एक ये हो सकता है, सो दिस इज व्हाट, दिस आपका एक लेवल 2 का डायग्राम ये भी हो सकता है. अगर आपने सपोज दैट कि रीड नंबर्स को भी आपने और उसको क्या बोलते हैं एक्सपेंड किया, तो उसका भी आप अलग से डीएफडी लेवल 2 डीएफडी बनाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो लेवल 2 डीएफडी है वो एक प्रोसेस के लिए ही, जो आपकी लेवल 1 है, लेवल 1 पे किसी एक प्रोसेस के लिए ही आप लेवल 2 ड्रॉ करते हैं. इंडिविजुअल प्रोसेसेस के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पर आप दो प्रोसेस को कंबाइंड करके एक लेवल 2 डीएफडी ड्रॉ करते हैं. ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज का.
ठीक है, कि जब आप लेवल 2 पे ड्रॉ कर रहे हैं तो लेवल 2 पे आपका प्रीवियस प्रोसेस, जो प्रीवियस लेवल है उसकी किसी एक प्रोसेस को लेके ही हम लेवल 2 बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 4 प्रोसेस है, चारों का हमें लेवल 2 बनाना है तो हमें 4 डीएफडी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चारों प्रोसेस का कंबाइन करके हम 3 लेवल 2 डीएफडी बना दें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट नाउ दिस इज अ लेवल 2 डीएफडी। तो लेवल 2 डीएफडी में आप देखेंगे कैलकुलेट स्क्वाड सम। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, दिस इज अ वन। यहाँ पर आप देखेंगे 0.3। सो 0.3 व्हाट दिस नंबर इज इंडिकेटिंग, दिस इज इंडिकेटिंग कि दिस, ये आपके जितने डॉट हैं, दीज डॉट आर इंडिकेटिंग द लेवल्स। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये दिस इज अ लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 है। ठीक है, क्योंकि ये लेवल 0 के लिए है, लेवल 1 का है, ये लेवल 2 का है। तो लेवल 0 की प्रोसेस जो एक्सपेंड हुई लेवल 1 पे, इस एक्सपेंशन में जो थर्ड प्रोसेस थी उसको हम यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं लेवल 1 की। ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 1, दैट मीन्स दिस 0.3 process of the level 1 is expanded into the 3 sub functions: calculate squared sum, compute mean and calculate root। ठीक है, तो ये आपने लेवल 1 यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिया, लेवल सॉरी लेवल 2 ऑफ द थर्ड प्रोसेस ऑफ दिस। ठीक है, अब हम इसको आप देखेंगे कि नाउ अगेन फर्दर आप ये देखेंगे कि ये कैलकुलेट स्क्वाड सम, इसको हमें अगर ये और करना है तो हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया, फर्दर हमने एक्सपेंड किया कि 3 0.3.1.1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका लेवल 3 है। दिस इज द लेवल 3 ऑफ प्रोसेस 1 ऑफ द प्रीवियस लेवल। ठीक है, प्रोसेस 1 ऑफ द प्रीवियस लेवल। ये जो आपका ये दिख रहा है 1, इसका मतलब हुआ कि ये 1 तो है, इससे प्रीवियस लेवल पे जो प्रोसेस थी वो फर्स्ट प्रोसेस है, उसको हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया। और उसका प्रीवियस लेवल पे क्या था, ये उसके प्रीवियस लेवल पे जो था ये जो थर्ड प्रोसेस थी, और ये वाली ये उसके प्रीवियस मतलब लेवल 0 पे ये 0 प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इस नंबर से आप यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो एक्सपेंशन है ये किस प्रोसेस के लिए है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इनपुट ए का स्क्वायर लिया है, इनपुट बी का स्क्वायर लिया है, इनपुट सी का स्क्वायर लिया और फिर हमने इसको ऐड कर दिया। सो दिस इज स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज लेवल 4, सॉरी लेवल 3 डीएफटी ऑफ द प्रोसेस। तो ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, so now decomposition is never carried on up to the basic instruction level. आपको ये लगता है कि it is sufficient to write the if you are able to identify the set of instructions, the lines of code that you need to write to implement that particular functionality. Further you no need to decompose that. ठीक है, तो आपका मैक्सिमम आपका 5 लेवल तक आप ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आगे आपको जरूरत नहीं होती है, मैक्सिमम 5। ठीक है, कभी भी आपके 5 से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। आप मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो वेरी सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर आप लेवल 1 पे ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ तो आप लेवल 3 तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, दे नीड टू बी एक्सपेंडेड इनटू द लेवल 3 और 4। ठीक है, 4 और 5, सॉरी लेवल 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर आपको लगता है कि इट इज सफिशिएंट टू it is sufficient to write the, if you are able to identify the set of instructions that you need to implement that particular functionality, no need to further expand that functions. Okay, so data dictionaries, what are the role of the data dictionary? Data dictionary का मतलब हुआ जितने भी data flows हैं, if we need to create a single or unique data dictionary for each for the DFD model for that particular सिस्टम। जो भी हमारे सिस्टम में हम डीएफडी बना रहे हैं, ठीक है, जितने भी डीएफडी बने, हो सकता है कि आपका लेवल 0 का एक हो गया, लेवल 1 का एक हो गया, ये 2 तो हो गए आपके मैंडेटरी। फिर आपके लेवल 2 पे हो सकता है आपने 3 बना लिए, फिर लेवल 3 के भी होंगे, लेवल 4 के भी होंगे। सो फॉर ऑल दीज जितने भी आपके डीएफडी बने हुए सिस्टम के, उन डीएफडी में जितने भी आपके डेटा फ्लो जो डेटा आइटम्स जो आप
डेटा फ्लो बताते हैं, all data flow must be included into that particular data dictionary. ठीक है, हमेशा याद रखो। why we need to maintain this, जिससे कि जो आपके जो रीडर है या जो डिजाइन टीम है, they will be able to easily understand कि कितने डेटा फ्लोज हैं जो इस पूरे सिस्टम में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर। और दूसरा ये भी है कि कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है, कि कई बार क्या होता है कि लेवल 3 पे अगर आप कोई ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि लेवल 1 का जो डीएफडी है, लेवल 1 पे आपने कोई डेटा फ्लो यूज किया है, वही डेटा फ्लो आप वहां पर भी वही नेम आपने फिर से वहां पे यूज कर लिया। सो दैट इज नीड टू बी मेंटेन द कंसिस्टेंसी, कि आप उसको वापस से यूज ना करें। तो जैसे ही आप एक ही आप रिपोजिटरी बनाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपकी मल्टीपल एंट्रीज नहीं होना चाहिए, एक ही एंटिटीज की मल्टीपल एंट्रीज नहीं होना चाहिए, एक ही डेटा आइटम्स की मल्टीपल एंट्रीज वहां पर नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वेरी गुड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑल डेटा आइटम्स। ठीक है, तो ये सारा इसमें ये लिखा हुआ है इसी के बारे में, डेटा डिक्शनरी के बारे में। सो ऑलवेज रिमेंबर, पूरे जो आपका डीएफडी मॉडल होगा किसी भी सिस्टम का, देयर मे बी कि आपके एक से ज्यादा आपके क्या बोलते हैं डीएफडी हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में। उसमें सब में हमेशा याद रखो कि आपकी एक ही डेटा डिक्शनरी होगी, एक से ज्यादा डेटा डिक्शनरी उसमें नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डेटा फ्लो डायग्राम इज बैलेंसिंग द डीएफडी। व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंसिंग ऑफ द डीएफडी? कि किसी भी लेवल पे जब आप उस प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जब आप लेवल्स यूज करते हैं, जैसे कि लेवल 0 और लेवल 1 पे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम जो है इतनी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप लेवल 2 और फर्दर डिटेल्ड लेवल को आप बनाते हैं तो इन दैट केस यू मस्ट नीड टू बैलेंस द डीएफटी to make the balance of the amongst the all DFT that you are creating at the further levels। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे हम इसकी बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग को मैं बताता हूँ। सो डेटा फ्लो इनटू और आउट ऑफ ए बबल मस्ट मैच द डेटा फ्लो एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ द DFT। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था इसमें, कि ये जो है आपका लेवल 0, यहाँ पर लेवल 0 में यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे ये इसकी सिस्टम बाउंड्री है। ठीक है, तो ये दो डेटा आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं, दो डेटा आइटम्स यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, एक आ रहा है और एक जा रहा है। ठीक है, देयर आर टू डेटा आइटम्स। ठीक है, और यू कैन से दैट टू डेटा फ्लोज आते हैं। ठीक है, एक यहाँ से सिस्टम में जा रहा है और एक सिस्टम से आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लेवल 1 पे बताते हैं इसको, तो लेवल 1 पे आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ द लेवल 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बाउंड्री के बाहर भी आपका ये और ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, लेवल जो 1 लेवल 2 जो ड्रॉ किया वो किसका किया, ये। अगर हम इसको ऐसे एक बॉक्स में बंद करें जिसको हम लेवल 2 करें, तो इस बॉक्स में हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम में इस ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक तो ये नंबर आ रहा है और एक नंबर जा रहा है। दैट मीन्स कि जब हम इसके लिए लेवल 2 ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर उस बाउंड्री में ऐसी हम बाउंड्री बनाएंगे, उसमें एक्सपेंशन कितना भी हो, कितने भी इनसाइड दिस बाउंड्री कितने भी डेटा फ्लो आप यूज करें, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर से एक ही इनपुट आना चाहिए और इस बाउंड्री से बाहर एक ही आउटपुट आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द डीएफटी। जैसे आप इसमें देखेंगे कि ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज द बाउंड्री। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर हमारे हो सकता है एक ये एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा है। दिस इज नॉट देयर इन द प्रीवियस लेवल। Some squared sum or mean square, these are the two new data flow, those are introduced into this level। but अगर आप इसकी बाउंड्रीज देखें तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेंशन। ये जो हमने ये जो रेड रेक्टेंगल बनाया है इसका मतलब एक दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द लेवल 1 थर्ड प्रोसेस। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया तो ये जो है ये आपका वैलिड नंबर है, ये इनपुट जा रहा है और वही एक आउटपुट आ रहा है। दैट मीन्स कि इस बाउंड्री के बाहर आपकी इससे ज्यादा, अगर मान के चलो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक और हमने इनपुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं वैलिड नंबर्स 1
यहाँ पर हमने लिख दिया वैलिड नंबर 1, ये 1 वैलिड नंबर 2 वैलिड नंबर 3। तो उस केस में क्या होगा कि आप ये 3 इनपुट यहाँ पे दिखा रहे हैं, 3 इनपुट दिखा रहे हैं, एक की जगह 3 इनपुट दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट। ठीक है, इसको आप यहां पर एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसके अंदर आप कुछ भी कर लो, लेकिन इसमें जो बाहर से इनपुट आ रहा है वो आपका सेम होना चाहिए। बाहर जो आउटपुट जा रहा है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, यहां पर भी आप देखेंगे कि आपका क्या है, कैलकुलेट स्क्वायर, इसको आप देखेंगे तो ये आप यहां देखेंगे कि ये जो है व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग दिस, कि आपका यहां से आपका ये यहाँ पे आपका बैलेंसिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट ए बैलेंस्ड डीएफटी। आप यहाँ पर 3 अलग अलग दिखा रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ये आप 3 इनपुट इसमें नहीं दिखा सकते। आइदर यू नीड टू क्रिएट यहाँ पर वैलिड नंबर्स, यहाँ पर आपका वैलिड नंबर आना चाहिए। ठीक है, वैलिड नंबर यहाँ पर आएगा। नाउ यू हैव टू क्रिएट ए प्रोसेस हियर व्हिच विल एक्सपेंड these number into the 3 different DFTs। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस DFT, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस लेवल पे हमारा एक ही नंबर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द DFT। ठीक है, तो यहाँ पर ये यस, दिस इज अनदर एग्जांपल। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस इज अ लेवल 1 एंड दिस इज अ लेवल 2, P1 P2 P3। so P3 is again expanded into the level 2। so the in this P3 you can see there are one input and two output, C D, and C is the input and D and E is the output। so whenever you are expanding outside this boundary, only this D and E should be the output and only one input should be coming to this। तो ये जो वन इनपुट आ रहा है वो कहीं भी किसी भी प्रोसेस, इस P3 की हमने P3.1 2 और 3 तीन प्रोसेस में एक्सपेंड किया। ठीक है, तो ये D और E किसी भी प्रोसेस से आप क्या है, दैट इज डिपेंड्स ऑन की जो आप ये फंक्शन है इसकी क्या इसको कैसे आप एक्सपेंड कर रहे हो। बट outside that boundary it remain the number of data flows remains as per the previous level। so this is called the balancing DFT। क्लियर? सो नंबरिंग का तो मैंने आपको बता दिया, नंबरिंग कैसे करते हैं, हर एक लेवल पे कैसे नंबर करते हैं। अगर अगर मान के चलो जैसे ये है दिस ये प्रोसेस है, इसको हमें अगर बताना है, ये अभी नंबरिंग नहीं है तो प्रोसेस नेम है। ठीक है, नंबरिंग में क्या होता है कि जैसे 0 मैंने लिखा 0.2.1.3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस नंबर है इस प्रोसेस नंबर को हम कैसे बता सकते हैं, दिस इज एट द लेवल 3। लेवल 3 क्यों क्योंकि इसमें 4 नंबर है, ये लेवल 0 लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 3 की थर्ड प्रोसेस है ये। ठीक है, इसकी जो पेरेंट प्रोसेस है वो लेवल 1, लेवल 2 में कौन सी प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस 1, और ये जो इसकी जो पेरेंट प्रोसेस है वो क्या है, लेवल 1 पे सेकेंड प्रोसेस है, और ये बेसिकली लेवल 0 की कौन सी है, 0 वाली पहली प्रोसेस है। so this is the numbering that we have to maintain। clear? so this is all about for